السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ساتھیوں، آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو نگار عظیم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، نگار عظیم ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کا اصل نام مہر نگار ہے۔ نگار عظیم کا اصل نام مہر نگار ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کا لکھا ہوا افسانہ ساتھیوں ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر آشیانہ نام سے شامل ہے۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے افسانہ آشیانہ کس کی لکھی ہوئی ہے تو ساتھیوں آپ کہیں گے نگار عظیم کی۔ ساتھیوں، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ مہر نگار ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کی اصل نام مہر نگار اور قلمی نام نگار عظیم ہے۔ ساتھیوں، اردو دنیا کے اندر میں، ادبی دنیا کے اندر میں نگار عظیم کے نام سے مشہور و مقبول ہوئی، جو خود بھی ایک شاعر تھے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے والد کا نام ثروت حسین ثروت اور والدہ کا نام یاسمین بیگم ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے والد کا نام ثروت حسین ثروت ہے، جو خود بھی ایک شاعر تھے۔ والدہ کا نام یاسمین بیگم ہے۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے نگار عظیم کی والدہ کا نام یاسمین بیگم ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی، شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی، نگار عظیم کے شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی، جو خود ایک آرٹسٹ اور تکنیکی قلمکار تھے ساتھیوں، اور صحافی اور ایڈیٹر بھی تھے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے والد کا نام ثروت حسین ثروت ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے والد کا نام ثروت حسین ثروت ہے اور والدہ کا نام ساتھیوں، والدہ کا نام آپ یاد رکھیں گے، والدہ کا نام یاسمین بیگم اور شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کا اصل نام، نگار عظیم کا اصل نام مہر نگار ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کا اصل نام مہر نگار اور قلمی نام نگار عظیم ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 23 ستمبر 1951 عیسوی کو۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے نگار عظیم کی پیدائش 23 ستمبر 1951 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی ساتھیوں؟ اتر پردیش کے میرٹھ میں۔ ساتھیوں، اتر پردیش کے اندر نگار عظیم کی پیدائش 23 ستمبر 1951 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی؟ اتر پردیش کے اندر۔ ساتھیوں، اتر پردیش کے اندر ایک تاریخی جگہ ہے جس کا نام میرٹھ ہے۔ ساتھیوں، اتر پردیش کے اندر ایک تاریخی مقام ہے، ایک تاریخی جگہ ہے جس کا نام میرٹھ ہے۔ ساتھیوں، میرٹھ سے اسماعیل میرٹھی صاحب آتے ہیں جو بچوں کے شاعر کہے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے مشہور افسانہ نگار نگار عظیم کی پیدائش کہاں ہوئی تھی ساتھیوں، تب آپ کا جواب ہونا چاہیے اتر پردیش کے اندر میں۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے مشہور افسانہ نگار جو ہماری نصابی کتاب ساتھیوں، جو ہماری درسی کتاب کے اندر شامل ہے ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی تو ساتھیوں ان کی پیدائش اتر پردیش کے اندر میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 23 ستمبر 1951 عیسوی کو نگار عظیم کی پیدائش 23 ستمبر 1951 عیسوی کو اتر پردیش کے اندر میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، اتر پردیش میں ایک تاریخی جگہ ہے جس جگہ کا نام میرٹھ ہے۔ ساتھیوں، اتر پردیش کے اندر ایک تاریخی مقام ہے، ایک تاریخی جگہ ہے جس کا نام میرٹھ ہے۔ ساتھیوں، میرٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی میرٹھ کے اندر میں ساتھیوں اسماعیل میرٹھی صاحب کی پیدائش ہوئی تھی۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں نگار عظیم کے والد کا نام ثروت حسین ثروت ہے۔ نگار عظیم کے والد کا نام ثروت حسین ثروت ہے اور والدہ کا نام یاسمین بیگم ہے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے والد کا نام ثروت حسین ثروت ہے، والدہ کا نام یاسمین بیگم ہے۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے نگار عظیم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی۔ ساتھیوں، عبدالعظیم صدیقی ایک قابل شخص تھے۔ ساتھیوں، ایک آرٹسٹ تھے، قلمکار تھے، ساتھیوں ایڈیٹر بھی تھے اور ایک بہت بڑے صحافی بھی تھے۔ والدہ کا نام یاسمین بیگم ہے، شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی، جو خود ایک آرٹسٹ اور تکنیکی قلمکار ساتھیوں تکنیکی قلمکار اور صحافی اور ایڈیٹر تھے۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی۔ ساتھیوں، نگار عظیم کے شوہر کا نام عبدالعظیم صدیقی آرٹسٹ اور تکنیکی قلمکار تھے اور صحافی بھی تھے۔ ساتھیوں، ایک بہت بڑے ایڈیٹر تھے، صحافی تھے۔ ساتھیوں، اردو دنیا کے اندر نگار عظیم کا نام افسانہ نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ اردو دنیا کے اندر نگار عظیم ساتھیوں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے مقبول ہوئی ہیں، ساتھیوں ایک محقق کی حیثیت سے مقبول ہوئی ہیں۔ ساتھیوں، میں ان کے بارے میں بتاؤں نگار عظیم آج حاضر کے ایک اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کی پیدائش ساتھیوں ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اتر پردیش کے اندر میں 23 ستمبر 1951 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ساتھیوں، ان کا ادبی سفر جاری ہے، ساتھیوں ان کا قلمی سفر جاری ہے۔ نگار عظیم آج حاضر کے ایک اہم افسانہ نگار ہیں، اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہوئی۔ نگار عظیم آج حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہیں، اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہیں۔ ساتھیوں،
हमारी दरसी किताब, हमारी निसाबी किताब दरख्शां सादों के अंदर साथियों एक अफसाना निगार की हैसियत से साथियों एक अफसाना निगार की हैसियत से निगार अजीम शामिल है। इनका अफसाना लिखा हुआ साथियों आशियाना हमारी निसाबी किताब में है। साथियों निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। निगार आजिम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। निगार आजिम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। निगार आजिम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। साथियों इस तरीके से आप याद रखेंगे निगार आजिम ने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी की तनकीदी जायजा पेश करके जामिया इस्लामिया से साथियों पीएचडी की डिग्री हासिल की। निगार आजिम ने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी की तनकीदी जायजा पेश करके जामिया इस्लामिया से साथियों पीएचडी की डिग्री हासिल की। साथियों अगर कोई आपसे पूछे निगार आजिम ने पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल की थी, साथियों अगर कोई आपसे पूछे निगार आजिम ने पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल की थी, साथियों आप याद रखेंगे जामिया इस्लामिया से। निगार आजिम ने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। साथियों इसे आप हमेशा याद रखेंगे। निगार आजिम ने पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल की थी, निगार आजिम ने पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल की थी, साथियों आप जवाब देंगे जामिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। साथियों निगार आजिम के अफसानों का पहला मजमूआ 1990 में अक्स के नाम से शाये हुआ। साथियों निगार आजिम एक अफसाना निगारा है। साथियों निगार आजिम एक अफसाना निगारा है। निगार अजीम एक मकबूल तरीन अफसाना निगारों में शुमार की जाती हैं। निगार अजीम के अफसानों का मजमुआ साथियों निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ 1990 में अक्स के नाम से शाये हुआ। इसके बाद 1999 में मजमुआ गहन शाये हुआ। साथियों तीसरा अफसानवी मजमुआ इमारत वगैरह काबिल तारीफ है। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ 1990 में अक्स के नाम से शाये हुआ। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ 1990 में अक्स के नाम से शाये हुआ। साथियों अफसानवी मजमुआ अक्स है। साथियों निगार अजीम की लिखी हुई अफसानवी मजमुआ जो है यह अक्स है जो 1990 ईस्वी के शाये हुआ था। 1990 ईस्वी में शाये हुआ था निगार अजीम के अफसानों का मजमुआ। साथियों 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ। इसके बाद 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाये हुआ। तीसरे अफसाना मजमुआ इमारत के नाम से शाये हुआ जो साथियों काबिल जिक्र है। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप समझ रहे होंगे। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ। साथियों आप याद रखेंगे निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ। साथियों इसके बाद 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाये हुआ। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ। इसके बाद 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाये हुआ। तीसरा अफसानवी मजमुआ साथियों इमारत है। तीसरा अफसानवी मजमुआ इमारत है जो साथियों काबिल तारीफ है। साथियों ये तीनों अफसानवी मजमुआ काफी मकबूल और मशहूर है। साथियों अब मैं आपको आगे बताऊं निगार अजीम ने अफसानों के अलावा सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। निगार अजीम ने अफसानों के अलावा सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। साथियों आप याद रखेंगे निगार अजीम ने अफसानों के अलावा सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। साथियों आप ये इस बात को भूलेंगे नहीं निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ साथियों 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ। उसके बाद साथियों 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाये हुआ। इसके बाद तीसरा अफसानवी मजमुआ साथियों इमारत वगैरह काबिल तारीफ है। साथियों इसके बाद मैं आपको बताऊं निगार अजीम ने अफसानों के अलावा सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। निगार अजीम हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया। याद रखेंगे साथियों निगार अजीम हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और उनका फन का जायजा पेश किया और बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी हैं। क्यों अभी मैं आपको निगार अजीम के बारे में बता रहा हूँ। साथियों निगार अजीम एक मकबूल तरीन अफसाना निगारों में शुमार की जाती हैं। साथियों निगार अजीम ने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया और बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। साथियों निगार अजीम ने गर्द आवर्गी के नाम से एक सफरनामे भी लिखा जो काफी मकबूल रहा, जो खास मकबूल हुआ। साथियों आप याद रखेंगे निगार अजीम के साथियों एक सफरनामे है। निगार अजीम के एक सफरनामे है जिसका नाम गर्द आवर्गी है, जिसका नाम गर्द आवर्गी है। साथियों याद रखेंगे निगार अजीम ने गर्द आवर्गी के नाम से एक सफरनामे भी लिखे हैं। साथियों निगार अजीम ने गर्द आवर्गी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा जो खास मकबूल हुआ। साथियों निगार अजीम की तख्लीकात में मैं आपको बताऊं अक्स गहन इमारत गर्द आवर्गी। साथियों ये गर्द आवर्गी सफरनामा है। निगार अजीम की तख्लीकात में मैं आपको बताऊं साथियों निगार अजीम की तख्लीकात में अक्स गहन इमारत साथियों ये अफसानवी मजमुआ है। अक्स गहन इमारत अफसानवी मजमुआ है। साथियों इन्होंने एक सफरनामे भी लिखे हैं साथियों जिसका नाम गर्द आवर्गी है। साथियों याद रखेंगे आप निगार अजीम ने एक सफरनामे भी लिखे हैं। निगार अजीम ने सफरनामे भी लिखे हैं साथियों जो काफी मकबूल हुआ, काफी मशहूर है। साथियों उसका नाम गर्द आवर्गी है। साथियों गर्द आवर्गी के नाम से निगार अजीम ने एक सफरनामे भी लिखे साथियों जो काफी मकबूल और मशहूर हुआ। साथियों इनकी
तखलीकात में अक्स गहन इमारत साथियों, अक्स गहन इमारत ये तीनों अफसानवी मजमूआ है। गर्दावारगी सफरनामा है। मंटू का सरमाया फिक्रोफन साथियों, मंटू का सरमाया फिक्रोफन ये तनकीदी किताब है। इंतखाब कलाम सरवत मेरठी, इंतखाब कलाम सरवत मेरठी भी इनकी लिखी हुई है साथियों, इनकी लिखी हुई किताब है। हर चरण चावला फन और शख्सियत, हर चरण चावला फन शख्सियत साथियों की लिखी हुई किताब है। यादों के झरोके साथियों निगार अजीम की लिखी हुई किताब साथियों। निगार अजीम बहुत ही मकबूल मशहूर ख्वातीन अफसाना निगार हैं साथियों, ख्वातीन अफसाना निगार हैं साथियों। इनकी तख्लीकात के बारे में मैं आपको बताऊं, अक्स गहन इमारत, अक्स गहन इमारत ये तीनों साथियों अफसानवी मजमूए हैं साथियों। आप याद रखेंगे इनकी तख्लीकात को, अक्स गहन इमारत ये तीनों अफसानवी मजमूआ हैं। इन्होंने एक सफरनामा भी लिखी है गर्दावारगी के नाम से साथियों, इन्होंने एक सफरनामा भी लिखी है। मंटू का सरमाया फिक्रोफन साथियों, मंटू का सरमाया फिक्रोफन तनकीदी किताब भी है साथियों। इंतखाब कलाम सरवत मेरठी, इंतखाब कलाम सरवत मेरठी इनकी लिखी हुई किताब है साथियों। हर चरण चावला फन और शख्सियत, हर चरण चावला फन और शख्सियत इनकी लिखी हुई किताब है। यादों के झरोके इल्मुल बयान साथियों, निगार अजीम की लिखी हुई किताब है इल्मुल बयान। वो जो कह गए साथियों, वो जो कह गए ये सारे तसनीफ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे तसनीफात इनकी लिखी हुई हैं साथियों। मैं आपको बताऊं वह जो कह गए निगार अजीम की लिखी हुई किताब है। यादों के झरोके निगार अजीम की लिखी हुई किताब है, बहुत ही मशहूर मकबूल अफसाना निगार में शामिल की जाती हैं साथियों। निगार अजीम का पहला अफसाना शान हिंद के नाम से 1974 ईस्वी में दिल्ली में शाये हुआ। निगार अजीम का पहला अफसाना 1974 ईस्वी में शान हिंद के नाम से शाये हुआ। निगार अजीम का पहला अफसाना 1974 ईस्वी में शान हिंद के नाम से शाये हुआ। याद रखेंगे साथियों आपको। और ये कहाँ से शाये हुआ था साथियों? दिल्ली में शाये हुआ। पहला अफसाना शान हिंद के नाम से 1974 ईस्वी में दिल्ली में शाये हुआ साथियों। याद रखेंगे इनका पहला अफसाना साथियों, इनका पहला अफसाना शान हिंद के नाम से 1974 ईस्वी में दिल्ली में शाये हुआ। फिर लाजवाल अफसाने लिखे साथियों, इसके बाद फिर लाजवाल अफसाने तहरीर किए, लिखते रहे साथियों उर्दू दुनिया के अंदर में साथियों। उर्दू दुनिया के अंदर में निगार अजीम बहुत ही मकबूल हुई। उर्दू दुनिया के अंदर निगार अजीम साथियों बड़े ही इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं साथियों, बड़े ही इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं। इसके बाद मैं इनके बारे में बताऊं, मैं आपको बताऊं निगार अजीम साथियों, मैं निगार अजीम के बारे में आपको बताऊं। निगार अजीम ने बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम बनाई है जिसके जरिए उर्दू की आबियारी का काम बड़े पैमाने पर करती रहती हैं। निगार अजीम के बारे में मैं मुख्तसर बताऊं, निगार अजीम बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम चला रही हैं। निगार अजीम बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम चला रही हैं साथियों। निगार अजीम बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम चला रही है जिसके जरिए उर्दू की आबियारी का काम बड़े पैमाने पर करती रहती है। निगार अजीम ने एमफिल भी किया है साथियों, निगार अजीम ने एमफिल भी किया है और आज भी इनका अदबी सफर जारी है। निगार अजीम ने एमफिल भी किया है और आज भी इनका अदबी सफर जारी है साथियों, आज भी इनका अदबी सफर जारी है साथियों। मैं आपको बताऊं निगार अजीम जिसका असल नाम मलिका महर निगार है, इसके अंदर मैं आपको महर निगार के बारे में बता रहा हूँ साथियों। महर निगार जिसका असल नाम मलिका महर निगार है। अजीम साथियों जिनका असल नाम निगार अजीम, जिनका असल नाम मलिका महर निगार है। निगार अजीम जिनका असल नाम मलिका महर निगार है। आज के क्लास के अंदर मैं आपको निगार अजीम के बारे में बता रहा हूँ साथियों। आज के क्लास में मैं आपको निगार अजीम के बारे में बता रहा हूँ। मैं आप तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं साथियों। इस वीडियो को आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो साथियों मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें साथियों और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखेंगे साथियों निगार अजीम ने बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम बनाई है साथियों। आप याद रखेंगे निगार अजीम ने बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम बनाई है जिसके जरिए उर्दू की आबियारी का काम बड़े पैमाने पर करती रहती है। निगार अजीम ने एमफिल भी किया साथियों और आज भी अदबी सफर जारी है और आज भी इनका अदबी सफर जारी है। निगार अजीम ने बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम बनाई है जिसके साथ जरिया साथियों जिसके जरिया उर्दू की आबियारी का काम बड़े पैमाने पर करती रहती है। निगार अजीम ने एमफिल भी किया साथियों, आज भी उनका अदबी सफर जारी है साथियों। आज की क्लास में मैं आपको निगार अजीम के बारे में बता रहा हूँ साथियों। निगार अजीम की पैदाइश उत्तर प्रदेश के अंदर में 23 सितंबर 1951 ईस्वी को हुई थी साथियों। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो साथियों एक तारीखी जगह है, एक तारीखी शहर है मेरठ साथियों। मेरठ के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। मेरठ के अंदर में साथियों इस्माइल मेरठी साहब की पैदाइश हुई थी जो बच्चों के शायर कहे जाते हैं। हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादों के अंदर आशियाना साथियों एक अफसाना है जिसका नाम आशियाना है, निगार अजीम की लिखी हुई है साथियों। वालिद का नाम सरवत हुसैन सरवत है, वालदा का नाम यास्मीन बेगम है साथियों। निगार अजीम के वालदा का नाम यास्मीन बेगम है। शोहर का नाम अब्दुल अजीम सिद्दीकी है साथियों। शोहर का नाम अब्दुल अजीम सिद्दीकी है साथियों जो एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। इनके शोहर बहुत बड़े सहाफ़ी हैं साथियों और एडिटर भी हैं साथियों। मैं आपको बताऊं एक
तकनीकी कलमकार हैं। साथियों शौहर अब्दुल अजीम सिद्दीकी, साथियों शौहर अब्दुल अजीम सिद्दीकी आर्टिस्ट और तकनीकी कलमकार हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप निगार अजीम के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप निगार अजीम के बारे में बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। साथियों मैं आपको फिर से बता दूं, निगार अजीम इनका असल नाम मलिका मेहर निगार है। निगार अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार है और कलमी नाम साथियों अदबी नाम निगार अजीम है। निगार अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है, उर्दू दुनिया में मशहूर मकबूल भी है। साथियों निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। साथियों निगार अजीम ने उर्दू में भी एमए किया, इसके बाद ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। साथियों इसके बाद मैं आपको बताऊं, निगार अजीम ने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश किया। साथियों तनकीदी जायजा पेश किया है और जामिया मिल्ला इस्लामी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। साथियों अगर कोई आपसे पूछे अफसाना निगार मशहूर मकबूल अफसाना निगार निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है, तो साथियों आप याद रखेंगे जामिया मिल्लिया से। साथियों जामिया इस्लामिया से, साथियों आप याद रखेंगे जामिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ याद रखेंगे। साथियों निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ। साथियों इसके बाद 1999 ईस्वी में घन के नाम से शाये हुआ। इसके बाद साथियों इमारत के नाम से शाये हुआ। इसके बाद फिर लाजवाल अफसाने लिखते रहे। साथियों निगार अजीम की लिखी हुई 3 अफसानवी मजमुए हैं। साथियों निगार अजीम की लिखी हुई 3 अफसानवी मजमुए हैं जो बहुत ही मकबूल हुए। साथियों बहुत ही मशहूर हुए हैं। पहला अफसानवी मजमुआ 1990 ईस्वी में अक्स के नाम से शाये हुआ। अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में पहला अफसानवी मजमुआ शाये हुआ। इसके बाद 1999 ईस्वी में घन के नाम से शाये हुआ। इसके बाद इमारत के नाम से शाये हुआ। साथियों ये तीनों काबिल तारीफ हैं। साथियों ये तीनों अफसानवी मजमुए काबिल तारीफ हैं। निगार अजीम ने अफसानों के अलावा सफरनामे और तनकीदी मैदान में भी नुमाया काम किए। साथियों निगार अजीम ने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया और बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुके हैं। साथियों निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है। निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से साथियों एक सफरनामा भी लिखा है जो काफी मकबूल है। साथियों काफी मशहूर है। गर्द आवारगी के नाम से निगार अजीम ने एक सफरनामे भी लिखे। साथियों गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामे भी लिखे जो काफी मकबूल हुआ। साथियों निगार अजीम की तख्लीकात में अक्स गहन इमारत ये तीनों साथियों अफसानवी मजमुआ है। गर्द आवारगी सफरनामे है। साथियों मंटू का सरमाया फिक्र फन, साथियों मंटू का सरमाया फिक्र फन ये तनकीदी किताब है। इंतखाब कलाम सरवत मेरठी, इंतखाब कलाम सरवत मेरठी साथियों ये भी तसनीफ निगार अजीम की लिखी हुई है। ये भी तसनीफ निगार अजीम की है। हरचरण सिंह चावला और शख्सियत इंतखाब कलाम सरवत मेरठी, इंतखाब कलाम सरवत मेरठी साथियों निगार अजीम की तसनीफ है। हरचरण चावला फन और शख्सियत, हरचरण चावला फन और शख्सियत निगार अजीम की तसनीफ है। हरचरण चावला फन और शख्सियत, हरचरण चावला फन और शख्सियत निगार अजीम की तसनीफ है। यादों के झरोके निगार अजीम की तसनीफ है। इल्मुल बयान निगार अजीम की तसनीफ है। वो जो कह गए निगार अजीम की तसनीफ है। साथियों मैं आपको बताऊं 1974 ईस्वी में, साथियों 1974 ईस्वी में शान हिंद के नाम से साथियों निगार अजीम ने पहला अफसाना लिखा था। 1974 ईस्वी में निगार अजीम ने शान हिंद के नाम से एक पहला अफसाना लिखा। निगार अजीम का पहला अफसाना साथियों निगार अजीम का पहला अफसाना शान हिंद 1974 में दिल्ली में शाये हुआ। फिर लाजवाल अफसाने तहरीर किए। निगार अजीम बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम चलाती है। साथियों निगार अजीम बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम बनाई है जिसके जरिए उर्दू की तालीम साथियों जिसके जरिए उर्दू की आबियारी का काम बड़े पैमाने पर करती रहती हैं। निगार अजीम बनात नाम की एक बैनुल अक़वामी तंजीम बनाई है जिसके जरिए उर्दू की आबियारी का काम बड़े पैमाने पर करती रहती हैं। निगार अजीम ने एमफिल भी किया। साथियों मैं आपको मजीद इल्म के लिए बताऊं निगार अजीम ने एमफिल भी पूरा कर लिया है। इसके बाद साथियों अभी भी इनका अदबी सफर जारी है, आज भी इनका अदबी सफर जारी है। साथियों उम्मीद करता हूँ निगार अजीम के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों निगार अजीम की पैदाइश 23 सितंबर 1951 ईस्वी को हुई थी। साथियों निगार अजीम की पैदाइश 23 सितंबर 1951 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई। साथियों हमारी निसाबी किताब दरख्शाहिस्ता दोम के अंदर में मलिका मेहर निगार साथियों जो निगार आजिम के नाम से मशहूर हुई, साथियों जो निगार आजिम के नाम से मशहूर हुई वो एक अफसाना निगार के हैसियत से शामिल है। साथियों इनके अफसाना का नाम आशियाना है। साथियों इनके किरदार के बारे में मैं आपको
ساتھیوں ان کے کردار کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ان کے اندر 2 پوتے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں اس افسانہ کے اندر 2 پوتے ہیں، اس افسانہ کے اندر 2 پوتے ہیں، عدنان اور فرحان۔ ساتھیوں عدنان 9 برس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور فرحان 5 برس کے ہیں۔ شوہر برکت علی صدیقی ہوتے ہیں، شوہر برکت علی صدیقی ہیں، بیٹی رقیہ اور بیٹا سراج۔ ساتھیوں بیٹا سراج ہے اور بیٹا سراج جس کی نوکری ملازمت ساتھیوں بنگلور کے اندر لگ جاتی ہے۔ بہو کا نام عرفانہ ہے اور ماں کا نام زرینہ ہے۔ ساتھیوں ماں کا نام زرینہ ہے۔ ساتھیوں آشیانہ، ساتھیوں آشیانہ جو ایک افسانہ ہے، ساتھیوں ان کے کردار کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ساتھیوں ہماری نصابی کتاب میں، ہماری نصابی کتاب درخشاہ صدوم کے اندر جو افسانہ ہے اس کا نام آشیانہ ہے۔ اس افسانے کی تخلیق ساتھیوں ملکہ مہر نگار کی ہے۔ ساتھیوں اس افسانے کی تخلیق ملکہ مہر نگار نے کی ہے۔ ساتھیوں اس افسانے کے اندر 2 پوتے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں 2 پوتے ہوتے ہیں، عدنان اور فرحان۔ عدنان 9 برس کے قریب ہو چکے ہیں اور فرحان 5 سال۔ شوہر برکت علی صدیقی ہیں، بیٹی رقیہ ہے، بیٹا سراج ساتھیوں جس کی ملازمت بنگلور کے اندر لگ جاتی ہے۔ بہو عرفانہ، بہو کا نام ساتھیوں عرفانہ ہے اور ماں زرینہ ہوتی ہے۔ ساتھیوں ہماری نصابی کتاب درخشاہ صدوم کے اندر جو افسانہ ہے جس کا نام آشیانہ ہے، جس کی تخلیق ساتھیوں ملکہ مہر نگار نے کی ہے، جو نگار عظیم کے نام سے مشہور بھی ہیں۔ ساتھیوں ہماری نصابی کتاب درخشاہ صدوم کے اندر جو افسانہ ہے جس کا نام آشیانہ ہے، جس کی تخلیق ملکہ مہر نگار نے کی ہے۔ ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے میں نے جو ابھی آپ کو ملکہ مہر نگار یعنی نگار عظیم کے بارے میں جتنا بتایا آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ساتھیوں میں آپ سے پھر درخواست کروں گا، اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص بی پی ایس سی 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں، تو ساتھیوں یہ سارے ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم اور معاون ثابت ہوگا۔ میں آپ تمام ساتھیوں سے پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا، آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں، پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ساتھیوں لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں گے۔ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ ساتھیوں اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی پی ایس سی 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں، تو ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے، یہ کلاس آپ کے لیے کافی اہم اور خاص ہے۔ ساتھیوں اس کلاس کو آپ مس نہ کریں گے، ساتھیوں اس کلاس کو دیکھنا نہ بھولیں گے۔ ساتھیوں اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر ملتا ہوں نئے عنوان کے ساتھ، نئے ویڈیوز کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے